Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too, guys. Chalo, ठीक है. So let's start with our session, and today we'll be discussing about the issue of Deepak Prakash reappointment case. This particular matter is currently pending in the Supreme Court of India, and the Supreme Court of India has actually issued notices to the Bihar government and the Election Commission of India as well. Now, what is this entire issue all about? So, देखो, this particular issue is related to the concept of parliamentary system of government. Okay? The parliamentary system of government, which is actually followed in our country, that is what this particular issue is all about. Now, what happens in a parliamentary system of government is that there is no strict, there is no strict separation of power between executive and legislature. There is no strict separation of power between the executive and the legislature. So the executive or the political executive in our country, which is the Council of Ministers, the Council of Ministers comes out of the legislature only, right? The Council of Minister comes out of the legislature only. So the primary thing over here is that the person can be a member of the Council of Minister, or the person can be a minister in our country as per the Constitution of India, as per the basic feature of the parliamentary system of government, when the same person is a member of the House as well, right? वही पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे सबसे बेसिक एसेंशियल फीचर होता है कि जो भी आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, जो भी आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यहाँ पर, वो हमारे यहाँ हाउस का भी मेंबर होगा, लेजिस्लेचर का भी मेंबर होगा. And therefore, the executive is coming out of legislature, and therefore we can say that there is no strict separation of power between the executive and the legislature. इसी चीज को अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करोगे ना, तो जैसे यूएसए इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. वहां पर उनकी जो एग्जीक्यूटिव है, वहां पर उनकी एग्जीक्यूटिव कौन है? जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, सेक्रेटरी ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है. ठीक है, ये सब लोग वहां के मिनिस्टर्स की तरह काम करते हैं. अब क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस में जो है, वो क्या कांग्रेस का पार्ट होते हैं? इज ही अ मेंबर ऑफ द सेनेट और द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? द आंसर इज नो. सो द एग्जीक्यूटिव इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर देयर. बट हमारी कंट्री में ये एक बेसिक प्रोविजन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आप तभी पार्ट हो सकते हो जब आप हाउस का मेंबर हो, एंड देयरफॉर a person can be appointed as a minister only when the person is member of the house. ठीक है, a person can be appointed as a minister, a person can be appointed as a member of the council of minister only when he is a member of the house. कि आप जब member of parliament हो तो आप सेंटर में मिनिस्टर की तरह अपॉइंट हो सकते हो, जब आप एमएलए हो तो आप स्टेट में मिनिस्टर की तरह अपॉइंट हो सकते हो. बट देयर इज एन एक्सेप्शन एज वेल, and that exception is given under article 164 clause 4 of the constitution of India, which says that a person can't remain a minister, a person can remain as a minister, person can't remain as a minister for a period of 6 months or 6 successive months or consecutive months without being
अ मेंबर ऑफ द हाउस, कि आप किसी भी पर्सन को मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कर सकते हो हमारी कंट्री में फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर उसको हाउस की मेंबरशिप अटेन करनी ही होगी। एंड दिस इज द प्रोविजन विच अलाउज कि भाई if there is a person who is not elected member of the house, who is not a member of the house, उसको भी आप मिनिस्टर की पोजीशन पर अपॉइंट तो कर सकते हो, बट दैट इज फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और 6 महीने के बाद फिर उस पर्सन को, या 6 महीने के अंदर अंदर ही उस पर्सन को मेंबरशिप अटेन करनी पड़ेगी, हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। And if the person is not able to attain the member of the house during this period of 6 months, then at the expiry of the 6 months, that person will cease to be a minister of the house or minister of the government. तब फिर वो मिनिस्टर की पोजीशन पे नहीं रह सकते। तो 6 महीने का टाइम विंडो दिया जाता है। अभी हमें बिहार में देखने के लिए क्या मिला, बिहार में एक इंडिविजुअल को पिछली गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, बिहार में पिछली गवर्नमेंट के अंदर एक पर्सन को मिनिस्टर की तरह अपॉइंट किया गया एंड ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, 6 महीने का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एंड उसको फिर अभी जब सम्राट चौधरी की चीफ मिनिस्टरशिप के अंदर नई गवर्नमेंट बनी, सम्राट चौधरी इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, उनके अंडर जब नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूट किया गया ना, उस पर्सन को फिर से मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कर दिया गया एंड देयरफॉर अ पिटीशन वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू द रिट ऑफ क्वो वारंटो क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट। एंड इस पर्टिकुलर सिनारियो को लेकर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी अवेलेबल है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली कहता क्या है, करंट कंट्रोवर्सी क्या है, what is the previous judgment of the Supreme Court of India with respect to this matter, and how the case is going to proceed probably in the near future. ठीक है, so article 164 clause 4 which is related to the constitution of the council of ministers in a state, उसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है to the rule of elected representation. So generally a person will be appointed as a minister when he or she is a member of the house, but there is an exception, appointment of non-legislator as a legislator as a minister is allowed, but for a period of 6 months only. जैसे अपॉइंट किया वहां से फिर एक 6 महीने का ग्रेस पीरियड चलना स्टार्ट हो जाएगा एंड इस 6 महीने के अंदर द मिनिस्टर इज सपोज टू सिक्योर इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर, उसको हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। अब दो सिचुएशन बनती है, if the person attains the membership of the house within the 6 months, he will continue to hold the office as the minister. But if the person is not able to attain the membership of the house within the period of 6 months, then after that 6 months, the person will immediately cease to be a minister. और पॉइंट ये है कि ये जो वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल विंडो दी गई है, दैट इज द विंडो ऑफ 6 months. दिस इज नॉट अ रिकरिंग एंटाइटलमेंट। ठीक है, आप यहां पर ये नहीं कर सकते हो कि 6 महीने खत्म होने से पहले आप रिजाइन कर दो और फिर से आप मिनिस्टर की तरह अपॉइंट हो जाए, वरना तो फिर वो जो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, इट विल डिफीट द बेसिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ओनली। तो दीपक प्रकाश की टाइमलाइन में यहां पर हुआ क्या है, 20th November 2025 को ही वाज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर इन द बिहार गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, उसकी उस पोजीशन पे इनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, एंड ही वाज इंडक्टेड एज अ मिनिस्टर हु वाज अ नॉन लेजिस्लेटर, सो ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो 20 नवंबर से उनकी वो 6 महीने की जो क्लॉक है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। 15th April 2026 को फिर क्या होता है, द गवर्नमेंट फॉल्स, द प्रीवियस चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, दैट इज नीतीश कुमार, ही रिजाइंस and subsequently that entire council of minister also resigns, and so the council of minister ceases to exist, चीफ मिनिस्टर ने भी रिजाइन कर दिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी वहां पर डिसॉल्व हो गई। फिर 7th May 2026 को क्या हुआ, this person Deepak Prakash, he was again sworn in under the new government led by the chief minister सम्राट चौधरी। अब जब नए चीफ मिनिस्टर बने सम्राट चौधरी, तो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर इस पर्सन को दोबारा अपॉइंट कर दिया गया एज द मिनिस्टर एंड 20th May को, because he was appointed for the first time on 20th November, 20th May को that 6 consecutive months from the initial November appointment expired, क्योंकि कंसेक्यूटिव 6 मंथ तक ही आप ज्यादा से ज्यादा या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप मिनिस्टर की पोजीशन पर रह सकते हो, वो पीरियड खत्म होने के बाद फिर आप मिनिस्टर की तरह अपॉइंट नहीं हो सकते।
आपको वहां पर यू विल सीज टू बी अ मिनिस्टर ऑफ द हाउस। तो 20 मई 2026 को वो 6 महीने का पीरियड फ्रॉम द इनिशियल अपॉइंटमेंट वो खत्म हो गया। इस दौरान he could not attain the membership of the house, and therefore a petition was filed in the Supreme Court of India challenging this particular appointment, and a writ was filed over there, that is the writ of quo warranto. So quo warranto is primarily a writ which is used to question the eligibility of the person holding a particular public office. हर पब्लिक ऑफिस में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसोसिएटेड होता है, and any such person who is holding such an office is supposed to have that required criteria or required eligibility. Now if you don't have the eligibility to be in that particular position, and अगर आप फिर भी उस position को hold करते हो, so a writ of quo warranto can be filed against you questioning the constitutional validity of that particular appointment, and यहाँ पर वही so the petition was filed, or this particular subsequent appointment was challenged by activist Rakesh Kumar Singh. He primarily stated that Article 164 Clause 4 gives one-time opportunity, and it cannot be revived or reset. कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर गई है, डिसॉल्व हो गई है, तो उससे वो क्लॉक रीसेट नहीं हो जाएगी। पहली बार जब आप मिनिस्टर की तरह अपॉइंट हुए हो, फिर आपको तुरंत वहां पर अगले 6 महीने के अंदर आपको मेंबरशिप अटेन करनी होगी। वरना तो आप ऐसे समझो ना, मैं आज अपॉइंट हुआ, 1 महीने बाद मैंने रिजाइन कर दिया, मैं फिर अपॉइंट हो गया, या 6 महीने के पीरियड के लिए मेरे पास टाइम पीरियड था, मैं 5 महीने तक मिनिस्टर रहा, मैंने रिजाइन कर दिया, मैं फिर अपॉइंट हो गया, फिर वो 6 महीने आप गिनना शुरू कर दोगे। तो ये तो इट वुड डिफीट द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 164, एंड देयरफॉर ही क्लेम्ड दैट दिस ग्रेस पीरियड कैन नॉट बी रीसेट और रिवाइव्ड। द चेंज ऑफ चीफ मिनिस्टर और द गवर्नमेंट does not reset the individual minister's constitutional clock, and this reappointment is a direct tactic to extend the non-legislator's tenure beyond 6 months. तो उन्होंने क्लेम किया है कि ये पर्टिकुलर चीज जो है, ये जो अपॉइंटमेंट है, दिस इज अ कलरेबल एक्सरसाइज। अब जो इश्यूज हैं एपेक्स कोर्ट के सामने, वो इश्यूज प्राइमरली ये है that can a non-legislator be repeatedly appointed as minister without securing electoral victory, कि विदाउट बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस, कि आप किसी पर्सन को मिनिस्टर की तरह बार बार अपॉइंट कर सकते हो वहां पर? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज, डज अ चेंज इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद इन द सेम असेंबली टेन्योर रीसेट द 6 मंथ ग्रेस पीरियड? कि उसी असेंबली, हर असेंबली की एक 5 साल की लाइफ होती है, उसमें अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बीच में चेंज होता है, तो क्या वो 6 महीने की जो जो डेडलाइन है, जो क्लॉक है, क्या वो उसकी वजह से रीसेट हो जाएगी? दिस इज द सेकंड इशू। And the third issue is the reappointment of Deepak Prakash a violation of established Supreme Court precedent? कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है इस पर्टिकुलर इशू पे, एंड देयरफॉर अनदर क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग आस्क्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज कि क्या दीपक प्रकाश का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का वायलेशन है? एंड द जजमेंट व्हिच यू आर रेफरिंग टू ओवर हियर इज अ केस ऑफ 2001, 2001 का सुप्रीम कोर्ट का एक डिवीजन बेंच का जजमेंट है, एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Now, this was the original attempt to bypass this particular constitutional limit. इस लिमिट को बाईपास करने का पहला इंसिडेंट था आपका एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वहां पे क्या हुआ, तेज प्रकाश सिंह was appointed as a minister in Punjab without being an elected MLA. वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस थे नहीं, फिर भी उनको मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कर दिया। अब जैसे ही वो 6 महीने की डेडलाइन खत्म होने वाली थी एज पर आर्टिकल 164 क्लॉज 4, he failed to get re-elected and he resigned from his post voluntarily just days before the 6 month deadline hit. 6 महीने में वो मिनिस्टर की मतलब मेंबर की तरह इलेक्ट हो नहीं पाए, और जैसे ही वो डेडलाइन खत्म होने वाली ही थी, उससे कुछ दिनों पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया, एंड आफ्टर दैट ही वाज immediately reappointed during the same assembly session, attempting to trigger a fresh 6 month period. ठीक है, कि वो रिजाइन कर दिया 6 महीने के जस्ट पहले, और फिर दोबारा अपॉइंट हो गए कि फिर अब 6 महीने आप गिनना शुरू करो। दिस पर्टिकुलर थिंग वाज चैलेंज्ड एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड द सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस हेल्ड दैट reappointment of the same individual without securing election to the legislature is unconstitutional. आप पहली बार जब अपॉइंट हुए हो, वहां से आपको 6 महीने का टाइम है, आप मेंबर बनो। आपको बार बार रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है विदाउट बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द हाउस, because that goes against the fundamental feature of the parliamentary system of government. और कोर्ट ने रैशनल प्राइमरली यही दिया कि 6 महीने एक रूल नहीं है कि जिसको आप फॉलो करते रहो, दैट इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। So Article 164 Clause 4 is a narrow exception to the general constitutional rules that
the ministers must be elected representatives. ठीक है, and therefore resignation and reappointment cannot be used as a device to repeatedly install unelected individuals at the post of minister. कि बेसिक रूल है कि जो मिनिस्टर्स बनेंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस होने चाहिए. आप रेजिग्नेशन को और रीअपॉइंटमेंट को टूल की तरह यूज नहीं कर सकते हो अनइलेक्टेड पर्सन को मिनिस्टर की पोजीशन पे बिठाने के लिए. And the 6-month period is a non-negotiable and cannot be extended under any circumstances because permitting this subvertive executive accountability to the legislature and ultimately to the electorate. ठीक है, कि अगर आप ये चीज परमिट करोगे, भाई डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टुवर्ड्स द हाउस. आप अगर इस तरीके से अनइलेक्टेड मेंबर्स को बार बार मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कर दोगे तो दैट गोज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल. तो सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. सिमिलर इस तरीके से है कि थोड़ा सा प्राइमरी डिफरेंस है यहाँ पर दोनों केसेस में, एसआर चौधरी में और दीपक प्रकाश में. एसआर चौधरी में द मिनिस्टर फेल्ड टू गेट इलेक्टेड, हियर आल्सो मिनिस्टर फेल्ड टू गेट इलेक्टेड. ही रिजाइंड वॉलंटरली बिफोर 6 months, द गवर्नमेंट फेल बिफोर 6 months. यहाँ पर गवर्नमेंट आपकी चेंज हो गई इन द सेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, नए चीफ मिनिस्टर बने, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी. He was reappointed by the same government. He is now reappointed by the new government. They tried to reset the 6 months constitutional clock and he claims that the clock resets with a new chief minister. कि अगर न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो रहा है, नया चीफ मिनिस्टर आया, नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आया है, तो फिर वहां पर क्लॉक ऑटोमेटिकली आपकी रीसेट हो जाती है. Now this is the issue which the court has to decide. So the point is both the cases attempt to make the 6-month exception renewable during the tenure of the same legislative assembly. चीफ मिनिस्टर भले ही नए आ गए हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भले ही नई बनी हो, बट चल तो वही लेजिस्लेटिव असेंबली रही है ना. नई लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शंस होने के बाद अब नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है, चल तो वही लेजिस्लेटिव असेंबली रही है. एंड सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट डिक्टेट्स दैट दिस क्लॉक कैनॉट बी रीसेट और रिवाइव्ड. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से आप इस क्लॉक को रीसेट या रिवाइव नहीं कर सकते. बट सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दिया था एसआर चौधरी का विद रिस्पेक्ट टू द रेजिग्नेशन वाला सिचुएशन. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व होकर नया चीफ मिनिस्टर आ रहा है, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन रही है, तब आप कर सकते हो या नहीं, दैट इज समथिंग विच इज टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ओवर हियर. तो यहां पर जो रेलिवेंट आपके पास एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन है, आर्टिकल 164 क्लॉज 4 6 मंथ की डेडलाइन प्रोवाइड करता है. 164 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर्टिकल 141 की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो होंगे वो बाइंडिंग होंगे. दो लीगल टर्म्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, को वारंटो एंड कलरेबल एक्सरसाइज. कलरेबल एक्सरसाइज का मतलब होता है डूइंग समथिंग इनडायरेक्टली व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डायरेक्टली. ऐसी किसी चीज को इनडायरेक्टली करने की कोशिश करना जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली प्रोहिबिट करके रखा हो, ऐसी चीज को या ऐसी एक्सरसाइज को हम कलरेबल एक्सरसाइज कहते हैं. लैंडमार्क केस की अगर इस इशू में हम बात करें तो दैट्स द केस ऑफ एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हो रहा है. तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दैट्स द इशू. नाउ इंपॉर्टेंट अपडेट, द ग्रेट इंडिया जीके टूर इज करंटली गोइंग ऑन. ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है टू अटेंड द सेशन एंड द रजिस्ट्रेशन लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहां से आप इसके लिए रजिस्टर कर लीजिएगा. नेक्स्ट, योर यूट्यूब शेड्यूल इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ योर प्रिपरेशन. So the Hindu analysis daily at 9 a.m, big news every Thursday at 6 p.m, Indian Express explained every Friday at 7 p.m, and weekly legal affairs every Monday at 5:30 p.m. इन सेशंस को रेगुलर बेसिस पर अटेंड करते रहो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द 50% ऑफ योर क्लैट पेपर. ठीक है, देन टॉपर्स टूर इज आल्सो गोइंग ऑन राइट नाउ, wherein you have a chance to sit face to face or interact face to face with the toppers of the last year. इसके लिए भी रजिस्टर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है and registration link is given in the description box, वहां से आप इसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हो. So that's it for today's session. I hope the topic is clear. ठीक है, बाकी let's see कि सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अब क्या डिसीजन देता है. रेस्ट, तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए and we'll meet soon. Right? Thank you so much everyone. Thank you so much guys. Thank you so much.